थिंक वो पीएचडी इंटरव्यू से ज्यादा मेरा लाइफ इंटरव्यू था। प्लीज स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है। हाय गाइस, वेलकम टू सलोनी इमनिदा, who studies in South Korea and gives you tips for South Korea to study for free. Okay, so आज का वीडियो टॉपिक है, actually it's not a video topic. I just wanted to share with you all that what happened yesterday with my PhD interview. Like, so yesterday, actually, if someone is new here and doesn't know what I'm talking about, my name is Saloni and I study in South Korea. I came to Korea through GK scholarship. If you don't know, you can just Google it. GKS means Global Korea Scholarship. I studied my master's in food science and technology from this scholarship in South Korea. But since it's very hard to get the scholarship again, it's impossible. Now you cannot reapply to GK scholarship if you already got it. So I needed to find some other solution to study for my my PhD, and I don't want to go to other country right now. So I just applied in Korea to various professors. So I got a chance to apply in Seoul National University of Science and Technology, and I applied in September or October. I applied in October. The application period was over in October, and then I got the email last week that I am selected for the interview process. I have completed my document processing. So when I went for the interview yesterday, असली स्टोरी यहाँ स्टार्ट होती है। तो असली स्टोरी ये है कि जब मैं गई इंटरव्यू देने, तब वहाँ 3 प्रोफेसर्स थे। एक प्रोफेसर जिसको मैंने अप्लाई किया था लैब में काम करने के लिए, फूड बायो इंजीनियरिंग में, एंड एक प्रोफेसर वहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। यूजुअली ऐसे ही होता है। वन प्रोफेसर इज द प्रोफेसर टू द लैब यू आर अप्लाइंग, वन इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू द डिपार्टमेंट यू अप्लाइड, एंड एक कोई और प्रोफेसर होता है। सो क्या मतलब, जो वहाँ पे एक लेडी प्रोफेसर थी, ठीक है, एंड शी ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड द अदर प्रोफेसर, लाइक माई प्रीवियस प्रोफेसर हु वाज देयर इन चुंगनाम। तो वो पहले से सब जान के बैठी थी कि मेरे ज़िंदगी में क्या हो चुका है, एंड ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल, मैंने सबको ये भी बताया है कि मैंने लैब बदला था एंड मैंने क्यों बदला था एंड वो कैसी सिचुएशन थी, तो ये भी उसको पता चल चुका था। मतलब आई वॉज शॉक्ड। मैं प्रिपेयर करके गई थी कि दे वुड आस्क अबाउट माई रिसर्च, दे वुड आस्क अबाउट माई इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट, और what I have accomplished, what papers I have published, why did I come here, why did I choose this lab, or why did I choose this university. I thought they would ask these questions in my interview, but her first question was, uh, may I know why did you change your lab when you were in your masters? Like, I was really shocked. And then उसके बाद आई थिंक वो पीएचडी इंटरव्यू से ज़्यादा मेरा लाइफ इंटरव्यू था। सो आई डोंट थिंक कि जो लोग पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके साथ ही होगा, बट जो ऑलरेडी कोरिया में पढ़ रहे हैं एंड वो कोरिया से किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ के दूसरी यूनिवर्सिटी शिफ्ट करते हैं, तो जो प्रोफेसर्स होते हैं उनका कनेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि दे जस्ट आस्क द प्रीवियस प्रोफेसर्स दैट हाउ दिस स्टूडेंट वाज। एंड वहाँ पे उन्होंने बस ये मेरे से पूछा फर्स्ट क्वेश्चन कि why did you come here, and then that professor, she asked me why did you change your lab, and then what are my plans after I complete my PhD. एंड ये सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि डू यू स्पीक कोरियन, एंड हाफ like 70% of my interview was in Korean because they came to know that I can speak Korean very well. So I also gave my self introduction in Korean, my researches in Korean. Even I talked
about all of my research in Korean, like not in English, and I explained everything. Now, because they were listening to me like so much in Korean, they wanted to listen my English. So then they started like, okay, let's talk in English. And then उसके बाद हम English में बात कर रहे हैं. And उसके बाद हम मेरी पुरानी लाइफ की स्टोरीज के बारे में भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं. एंड उन्होंने एक चीज़ नहीं, वो प्रोफेसर के बारे में वो बहुत सारी चीज़ें पूछी जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती. एंड मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो कोरिया में, तो आपका फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, मतलब आईपॉड हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, फ़ोन हो, इवन ईयरबड्स हो, वॉच, स्मार्ट वॉच हो, वो सारे आप वो जमा कर लेते हैं. तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग, इट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल. तो यस, लास्ट में उनका रिएक्शन अच्छा ही था कि ओके, हेल्प द अदर फॉरेनर्स टू लर्न कोरियन एंड ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश टू अदर कोरियंस एंड टीच कोरियन टू अदर फॉरेनर्स, सॉरी. तो ये सब उन्होंने बोला, बट it was very weird for me that they already ask other professors like how good I am. and आपका जो, अगर आप रीअप्लाई करते हो PhD करने के लिए या बैचलर्स करके मास्टर्स करने के लिए इन कोरिया, आपका जो एप्लीकेशन होता है वो आपके एप्लीकेशन एबिलिटी पे नहीं, बट आपके प्रीवियस प्रोफेसर आपके लिए क्या रिकमेंडेशन देंगे एंड वो आपके बारे में क्या बोलेंगे, इस पे ज़्यादा मैटर कर जाता है. जो कि आई डोंट थिंक कि ये सही है, क्योंकि किसी को उसके कैपेबिलिटी के बेसिस पे जज करना चाहिए, ना कि कोई प्रोफेसर उसके बारे में क्या बोल रहा है. मे बी किसी का, मेरा रिलेशन अच्छा था तो उसने ऐसा कुछ ख़राब नहीं बोला, बट बहुत सारे लोग होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, जिनका रिलेशन अच्छा नहीं होता प्रोफेसर के साथ, जैसे मेरे साथ पिछले बार हुआ था. एंड बहुत सारे प्रोफेसर्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते नहीं है कि उनके स्टूडेंट दूसरे लैब में जाके काम करे या दूसरी यूनिवर्सिटी में काम करे. वो चाहते हैं कि तुम यहीं पे आओ, यहीं पे सारी डिग्री करो. तो ये सब चीज़ होती है कोरिया में. एंड आई डोंट, मैं बहुत शॉक हो गई थी. मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे स्टडीज़ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे, या वो लोग मेरे पर्सनल चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जो कि बहुत वियर्ड था मेरे लिए. बट फॉर्चुनेटली मेरा जो प्रोफेसर था उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बस स्टडी ओरिएंटेड चीज़ें पूछी मेरे से. बट अदर प्रोफेसर, जो औरत प्रोफेसर थी, उसने ये काम किया. मैं भी एक औरत हूँ, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि औरतों को गॉसिप करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी पिछले वाली प्रोफेसर भी औरत ही थी एंड उसने सब चीज़ बता दिया मेरे बारे में, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा. एंड ये औरत गॉसिप की वजह से मेरा इंटरव्यू का जो माहौल था वो थोड़ा अलग हो गया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी, बट हो गया. तो ये सब हुआ मेरे साथ. बाकी इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो चिंता मत करो. ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है. मैंने बाकी जो भी इंटरव्यूज़ दी थी उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये मेरे साथ पहली बार हुआ है एंड ये उसी जगह हुआ जहाँ मुझे जाना था. तो कुछ नहीं कर सकते हैं. कल मैं गई थी सेफ्टी इन कोरिया का वीडियो बनाने रात में, एंड ये वाला आँख मेरा लाल है. ये वाले आँख के मुताबिक पता नहीं क्यों लाल है, बट लाल है. एंड कुछ तो हुआ है मेरे साथ उस ठंड में, क्योंकि मुझे कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी. हाँ, ये इसकी कहानी मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी, जहाँ मैं वो वीडियो अपलोड करूंगी. बट हाँ, PhD का इंटरव्यू ऐसा था मेरा. एंड मैं बहुत सच धज के गई थी. कोरिया में अपीयरेंस का भी बहुत महत्व है, क्योंकि अगर तुम सच धज के नहीं जा रहे हो तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो. मतलब तुम्हारा गेटअप बहुत अच्छा होना चाहिए. तो सुंदर बनना, मेकअप करना, बाल झाड़ना, अच्छे कपड़े पहनना और फिर इंटरव्यू में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन साउथ कोरिया फॉर इंटरव्यू, एंड नॉट ओनली फॉर PhD इंटरव्यू, फॉर एनी इंटरव्यू. इवन तुम एक वेटर के काम करने के लिए जा रहे हो, वेटर का काम करने के लिए भी तुमको एक सूट और मेकअप और लिपस्टिक और ये सब करके जाना पड़ता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सोशल अपीयरेंस एंड ये सब चीज़ें बहुत कोरिया में मैटर करती हैं. तो ये मेरा PhD का इंटरव्यू कुछ खास अच्छा नहीं था एंड मुझे बहुत इरिटेशन हुआ कल.
पूरे दिन। बट एनीवेज ज़िंदगी ऐसी ही है एंड ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए एंड ज़िंदगी चलती रहेगी। ऐसे ही मेरा यूट्यूब भी चलता रहेगा एंड ऐसी ही खबरों के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, एंड नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें अगर नहीं दबाए हैं तो। एंड और भी बकचोदियों के लिए एंड और भी करतूतों के लिए जो कि मैं डिटेल में इंस्टाग्राम पे डालती हूँ, वो देखने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जो कि सारी वीडियो में दिखते रहता है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। तो हाँ, बाकी सारी और भी जानकारियाँ मेरे यूट्यूब पे चैनल पे हैं एंड मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, तो उस पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।